Friends, you must have revised the previous lectures, previous assignments. I think you are confident now. So let's proceed further. That is error analysis. So this is our next topic of this chapter, units and dimension. And first of all, try to understand the meaning of error. Error means mistakes, na? Mistakes. So, but how is it technically, if I say define error, basically when there is one true value and you are experimentally calculating some another value. So, the difference between the true value and the measured value, what you are calculating, that there is always some difference between the true value and the measured value. This difference is known as error. So, what we say, the difference between true value and the measured value is known as error. Clear? So, how many types of error we can commit? Types of error in the measurement, and we are measuring any physical quantity. So, how many types of error it is possible that we can commit while measuring any physical quantity? So, first type of error is known as systematic error. Systematic error. From the name itself, it is clear, means there is some system, means there is some you can say pattern with which we are committing the mistakes. That means cause is known to us, so we can remove that cause. So systematic error, generally it is due to we are adopting wrong method or you are using wrong formula. For example, let us take one example. You are performing an experiment to find out the acceleration due to gravity using simple pendulum. The most important precaution is that in simple pendulum there is a bob. You know what is simple pendulum? This is simple pendulum. So this bob should be very close to the ground. And you are performing your experiment in the lab, which is on the second floor, and your teacher says, consider this floor as the ground. So there is always some error. When you are going to calculate, you will not get exactly 9.8 meter per second square. So there is always some difference. So it is, you are adopting wrong method for calculating the acceleration due to gravity. Similarly, another example, you want to measure the temperature of your body and you are keeping your thermometer either under arms or inside your mouth. So both are giving different values. It is because what is the right method? You should keep that thermometer under your arms, that will give the right temperature. So this is how we are adopting the wrong method as well as we are calculating the wrong value. So there is always some difference in that true value and the measured value. Another is wrong formula. Suppose you have to find out the value of time period of a simple pendulum and you have to use this formula. But by mistake you are always using the formula, this formula. This is very common mistake done by the students. So that is why this is the wrong formula will always lead to the wrong value. So this is how we are committing the mistake. So how will you remove this error? Definitely by adopting a correct method or by using how will you correct it? By using correct formula, you will be able to remove that error and you will be able to write the value that is very close to the true value. Clear? So next is, this is first type of error, systematic error. Second is instrumental error. Instrumental error means there is some defect in the instrument or instrument is of low quality. Both can be the cause in the instrument. So how will you correct this error? By using the good quality instrument, or second by replacing the instrument with the correct instrument, not the faulty instruments. So this way we can remove the instrumental error. Means both systematic as well as instrumental error, we know the cause, hence we can remove the cause also. So this is
the two types of error where cause was known to us. And then third error we say random error, where cause is not known to us. It can be personal error, it can be physical conditions because of the physical conditions present when we are performing the experiment. So this is known as where cause is not known to us, we say random error. So how will you remove this random error? How will you remove? We take the n number of readings and then take the mean of all those n readings. Then you can be able, definitely you will be able to remove that error. So I repeat, random error is where the cause is not known to us. It can be personal error, personal carelessness. You are not using the right posture while calculating, while noting down the readings. So personal error, carelessness, because of the carelessness also you can have commit this error. मतलब कहने का ये कि रैंडम एरर में हमें कॉज पता नहीं है, हमारी किसी भी वजह से हमसे वो गलती हो रही है और जो कि हमें पता नहीं है और हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा है, हमारा जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से मैच नहीं कर रही है. एंड कॉज इज नॉट नोन टू अस बिकॉज जो हम गलती कर रहे हैं वो अनइंटेंशनली गलती हो रही है हमसे. तो ऐसी एरर को कैसे हम रिमूव करते हैं? हम n नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं और फिर उसका मीन ले लेते हैं. मीन लेने से क्या होता है कि कुछ वैल्यूज पॉजिटिव में जा रही है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में जा रही है, मतलब कुछ वैल्यूज ज्यादा आ रही थी ट्रू वैल्यू से, कुछ वैल्यूज कम आ रही थी, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, नलीफाई होकर हमें काफी क्लोज वैल्यू मिल जाती है. क्लोज किसके क्लोज? आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज हो जाती है. तो रैंडम एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं? इन दिस एरर कॉज इज नॉट नोन टू अस, वी हैव टू remove this error by just taking the mean of n number of readings. Clear to everyone? So this is the types of errors. Now few terms we have to understand which are related to the error analysis. So first is absolute error. Terms related to the error analysis, we are starting this. What is absolute error? एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए क्या करेंगे? सपोज आपने किसी भी सपोज एक बॉल का डायमीटर निकालना है, स्फेरिकल बॉल, छोटी छोटी बॉल्स, बॉल बियरिंग्स होते हैं, छोटी छोटी बॉल्स होते हैं, उनका डायमीटर निकालना है, या किसी वायर का हमने डायमीटर निकालना है. तो हमने रैंडम एरर हमने कहा हो सकती है, तो हमेशा हम क्या लेते हैं? 3 से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं. तो मैं जनरल हम बात करें, सपोज आपने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ले ली, A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN, और आपने उनको उसका मीन ले लिया, तो ये आपने मेजर किया. तो ये जो मीन निकाला, ठीक है, जो ये मीन निकालने के बाद जो आया आंसर, वो जो वैल्यू है और ये वैल्यू में इंडिविजुअली अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा. तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर इंडिविजुअल वन रीडिंग और वन मेजरमेंट इज नोन एज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग. इसका हम मॉड ले सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है. तो एब्सोल्यूट एरर इन 1. ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन 2 कैसे निकालेंगे हम? तो डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, जो मीन आपने निकाला, और जो उस समय की उसकी जो मेजर वैल्यू है, वो उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन 2. सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन n अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी व्हाट? am माइनस an, और ये इसका मॉड. मॉड का मीनिंग तो समझते हैं ना कि अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो भी हमें उसको क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है. तो एब्सोल्यूट एरर इन 1, absolute error in 2, and so on. How we can calculate the absolute error. This is one. Then next term is mean absolute error. Mean absolute error. Mean absolute error कैसे निकाला जाएगा? Delta AN means what? Delta A1 plus delta A2 plus dash dash delta AN डिवाइडेड बाय n. मतलब सारी एब्सोल्यूट एरर का क्या किया आपने? मीन निकाल लिया, तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई. तो हम क्या कर रहे हैं? टर्म्स रिलेटेड टू एरर एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं. जिसमें से हमने फर्स्ट टर्म डिस्कस करी एब्सोल्यूट एरर, सेकंड टर्म डिस्कस करी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर. नोट डाउन दिस, फिर हम आगे चलेंगे.
चलिए अब हमने फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं, हम रिजल्ट देखो कैसे लिखेंगे, ए है ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, मतलब कहने का ये कि जो हमारी फाइनल वैल्यू हमने ए कैलकुलेट करनी थी, तो जो मीन आई और हमने जो उसके अंदर पॉसिबल एरर हो सकती है वो प्लस माइनस डेल्टा ए एम, मतलब हमारी रीडिंग जो है वो ए एम माइनस डेल्टा ए एम लेस देन इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ए एम के बीच में कहीं लाई करते हैं। मैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बात और, सपोज ए एम आपके पास आता है 5 और डेल्टा ए एम आता है सपोज आपके पास 0.5, ठीक है। तो आप जब हम रीडिंग लिखेंगे तो क्या इसका मतलब ये क्या हो सकता है, 5 माइनस 0.5 से लेके हमारी वैल्यू 5 प्लस 0.5 के बीच में लाई कर सकते हैं, मतलब 4.5 के से लेके हमारी वैल्यू बीच में लाई करेगी 5.5 के बीच में। तो ये हम जो है एक तरीके से मेजरमेंट के अंदर हम ये बता सकते हैं कि हमारी रेंज जो वैल्यू की जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी जो रेंज है वो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में ही लाई करेगी। तो ये हमें कैसे पता चला, हम जब एरर को काउंट किया, सारी एरर को कंसीडर करके इसके बीच में ही कहीं हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर कमिट हो रहा होगा और उसको हमने कंसीडर कर लिया और फाइनल आंसर जो है वो हमारा इसके बीच में कहीं लाई करेगा। So this is the way to write down the final result with error. So this is the how we will write. ठीक है, so please note down this. Next हम आगे चलेंगे, it is relative error and percentage error. Relative error and परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर कैसे, डेल्टा ए एम हमने निकाला डिवाइडेड बाय ए एम इज नोन एज रिलेटिव एरर, ठीक है। एंड परसेंटेज एरर इज, जो ये रिलेटिव एरर है इसकी हमने परसेंटेज निकाल देंगे, तो दिस इज योर परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हम नोट करेंगे और इसके बेस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे असाइनमेंट के फॉर्म में, जो आपको असाइनमेंट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपना अपलोड कर देंगे इसको और आप उसको डाउनलोड करेंगे। तो ये हम असाइनमेंट के फॉर्म में अब सारा जो भी हमने समझा है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी तक जो हमने समझा है। असाइनमेंट ये 3 होगा, आपने सब नोट कर लिया होगा, ये हम आगे चलते हैं इसको असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट सी का क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए वायर, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम पहले। द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज आपको मालूम है वो डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, मीन्स ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जनरली यूज करते हैं बहुत स्मॉल डायमीटर जब हमें निकालना है तो हम स्क्रू गॉज को यूज करते हैं। The diameter of a wire as measured by a screw gauge was found to be, उसने कितनी वैल्यूज दे रखी है आपके पास, 1.328, ये D1 हो गया एक तरीके से, फिर D2 1.330, फिर ये सब सेंटीमीटर में दिया उसको, ठीक है। D3 आपके पास 1.325 एंड D4 1.326 एंड D5 is 1.334 and D6 is 1.336 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया उसने। तो उससे मतलब कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, मतलब DM निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज द मीन वैल्यू, हाउ वी कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। फिर उसने बोला एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मतलब क्या निकालना है आपको, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4, डेल्टा D5 एंड डेल्टा D6, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, DM माइनस D1, DM माइनस D2, DM माइनस
D3 DM minus D4 DM minus D5 and DM minus D6। ये आपने निकाल लिया। ये हुआ हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। फिर उसने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये सारी आपने निकालनी है, तो इनका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा DM कैसे निकलेगा? डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 प्लस डेल्टा D4 प्लस डेल्टा D5 प्लस डेल्टा D6 divided by 6. This is again mean absolute error in finding the diameter. ये हो गया थर्ड पार्ट। फिर है हमारे पास फोर्थ फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा? देखो, फ्रैक्शनल एरर क्या सीखा हमने? फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर मतलब वही रिलेटिव एरर। दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर किसका? रिलेटिव एरर का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर एक ही बात है। So it is delta DM divided by DM. Clear? Then percentage error. Percentage error. और वो कैसे निकलेगी? डेल्टा DM अपॉन DM into 100. Clear? Now also express the result in terms of absolute error and percentage error. कैसे निकालेंगे? जो आपके पास DM प्लस माइनस डेल्टा DM, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में आंसर। ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में आंसर कैसे आएगा? दिस इज योर फाइनल डायमीटर आ रहा है ना, कि कैसे एक्सप्रेस करना है। बोला हाउ विल यू एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट, ये हमने सीखा था अभी। तो हाउ विल यू एक्सप्रेस D इज इक्वल टू दिस, और परसेंटेज की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा DM डिवाइडेड बाय DM इंटू 100, जो कैलकुलेट करके आएगा आपका आंसर, उसकी 100 देंगे। So this is how to express the result in absolute error and percentage error. ठीक है, तो ये हमें हिंट दिया, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है पूरा। प्लस माइनस ही है और कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना था कि जो हमने पढ़ा उसको कैसे आपने अप्लाई करना है। ऐसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे, ये हो गया सबका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? We measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be, मतलब T1 दे दिया उसने कितना आपके पास? 2.63 सेकेंड, T2 2.56 सेकेंड, T3 2.42 सेकेंड, T4 2.71 सेकेंड, T5 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? डेल्टा T1 निकालें, डेल्टा T2 निकालें एंड डेल्टा T5 तक निकालना है आपको। ठीक है, अब इसने आपसे बोला ही नहीं कि T वो निकालो मीन, बट ऑब्वियसली हम जब तक PM नहीं निकालेंगे तब तक हम डेल्टा निकाल ही नहीं सकते। सबसे पहला टास्क है इसका PM निकालेंगे, मतलब मीन ऑफ ऑल द टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमें करना पड़ेगा हमें। फिर डेल्टा T1 मतलब कैसे? मॉड TM माइनस T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 एंड डेल्टा T5 तक करके हमें इसका मॉड निकालना है सबका। एब्सोल्यूट एरर इन टाइम आ जाएगा। फिर बोला रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? इसका फिर हमें डेल्टा TM निकालना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? डेल्टा TM डिवाइडेड बाय TM, और फिर परसेंटेज एरर निकालना है हमको। तो मतलब डेल्टा TM डिवाइडेड बाय TM इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर भी आ जाएगा हमारे पास। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब हम ऐसी कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं
जिसके अंदर ना एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है। जैसे मुझे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, तो मुझे लेंथ को मेजर करना पड़ेगा, फिर ब्रेड्थ को मेजर करना पड़ेगा, फिर उसको एक फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर मैंने लेंथ को मेजर करने में कोई गलती करी हुई है और ब्रेड्थ को मेजर करने में भी कोई गलती करी हुई है, तो जब मैं एरिया निकालूंगी तो फिर तो गलती दोनों, एरिया करते समय भी गलती आएगी ना, एरिया को कैलकुलेट करते समय भी हमारे पास गलती आ जाएगी। आई गेटिंग योर पॉइंट। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कहा कि अगर हम ऐसी कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा टर्म इन्वॉल्व है फाइनल आंसर कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है? एरिया का निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैंने पहले लेंथ मेजर करी स्केल से और उसको मेजर करने में मेरे से गलती हुई है, ठीक है। फिर ब्रेड्थ को मेजर किया, उसको मेजर करने में मेरे से गलती हुई है, और मैंने फाइनल आंसर में एरर को लिखा कि ये मेरी एरर हो सकती है। ऐसे ही जब एरिया निकालेंगे तो एरिया करते समय भी एरर आएगा ही आएगा। तो फिर जब फाइनल आंसर एरिया लिखा जाएगा तो उसके अंदर एरर को कैसे हम काउंट करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट टास्क हमारे को ये समझना है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब एरर आगे कैसे प्रोपेगेट करती है जब हम एक से ज्यादा क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करेंगे, दैट इज योर propagation of error or combination of error. Propagation of error or combination of error. तो कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं? आई थिंक तो 5 है ना आपके पास। एक तो एडिशन हो सकता है कि हमने कोई क्वांटिटी फाइनल निकाली जिसमें ऐड हो रहा हो, जैसे पेरीमीटर निकालते हैं तो एडिशन हो रहा होता है। ऐसे ही सेकेंड हमें निकाली कोई डिफरेंस चीज जिसमें आ रहा हो, डिफरेंस करके हमें फाइनल आंसर आ रहा हो। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन करके आ रहा हो। फोर्थ, डिवीजन करके आ रहा हो। एंड फिफ्थ, अगर हमारे पास उसकी पावर में है, फॉर्मूले में कुछ पावर है कैलकुलेट करने, जैसे अगर हम डायरेक्ट हम बात करते हैं कि एरिया इज एल स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो पावर आ गई तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट भी पावर अगर हमारे पास है, जैसे ए स्क्वायर है तो ए की पावर 5 भी हो सकता है किसी फॉर्मूले में, किसी में रेज़ टू 6 भी हो सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरर? तो ये हम पांचों ऑपरेशंस कह सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो कि हम यूज कर सकते हैं व्हाइल मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट करेगी वो सीखना है अब हमको। तो सबसे पहले हम एडिशन को सीखेंगे। एडिशन, जैसे मान लिया दो हमने क्वांटिटी को मेजर किया, ए है और ये बी, इसको फाइनल इसके एरर की फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने इसको। अब मैं डेल्टा ए एम नहीं लिख रही हूँ, इट इज अंडरस्टूड ये मीन एब्सोल्यूट एरर ही लिखा जाता है। तो ए को लिखा मैंने ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी को मैंने लिखा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, विद एरर लिमिट हमने ये लिख लिया। और जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों के एडिशन से आने वाला है, ए प्लस बी। तो x में भी जो फाइनल आंसर में जो एरर आएगा उसको जो लिखा जाएगा वो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ही लिखा जाएगा। तो विद एरर लिमिट अगर मैं लिखूं इनको, तो x को लिखेंगे हम x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a को लिखेंगे हम a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखेंगे हम b प्लस माइनस डेल्टा b। आई रिपीट, हमने जैसे लिखा था वहाँ a m डेल्टा a m, है ना, ये अब अंडरस्टूड है कि मैंने जो a लिखा है वो उसकी 3 बार उसको या 4 बार मेजर करके उसका मीन निकाल के ही वो ये मीन वैल्यू है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में रहे हमारा प्रेजेंटेशन, तो हमने मीन को हटा दिया। इट इज बट ऑब्वियस है ये सब मीन वैल्यूज ही है। रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं बार बार उस बात को कि इसको फिर से हम इसको मीन निकालो फिर वो निकालो ना। अब प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हम जब आगे चल रहे हैं तो ये आपको मीन वैल्यू ही गिवन होगा हमेशा, और ये मीन वैल्यू ही गिवन होगा। नहीं होगा तो आपको निकालना होगा, तो फिर वो पूरा डिटेल देगा कि आपके पास ये 5 रीडिंग्स ली आपने एक ही, फिर आपने उसके अंदर फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, तो मीन लेके और एब्सोल्यूट एरर लेके। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमने यहाँ एम को स्पेसिफाई नहीं किया, तो इट इज क्योंकि अंडरस्टूड है ये मीन वैल्यू ही हम लेके चल रहे हैं। तो जब हम इसको एरर लिमिट्स में लिखेंगे एक्स का एक्सप्रेशन, तो ये बनेगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी।
अब आगे चलते हैं, इसको हम देखो कैसे लिखोगे। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पर आ जाएगा एक तरीके से, ए प्लस बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्स लिख सकती हूँ, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस बाहर मैं कॉमन ले लूँ तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स में क्या हो सकती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कहने का इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस बात को। ये मेरे ख्याल से इतना नोट कर लिया हूँ आपने, तो हम आगे चलेंगे। मतलब जो फाइनल मेरा आंसर आया है डेल्टा एक्स प्लस माइनस को लिखे हैं हम, क्या क्या एरर हो सकती है, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ठीक है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यही हो सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सी बनेगी, यही बनेगी। तो हमेशा हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर in x will be delta x is equal to delta a plus delta। तो मतलब हमने जब कोई क्वांटिटी मेजर करनी है एरर के फॉर्म में, तो हमने x इज इक्वल टू a प्लस बी पुट किया, ठीक है, उसको निकाल दिया, और एरर के लिए जो इंडिविजुअली एरर गिवन है उसकी डेल्टा एक्स भी डायरेक्ट आ जाएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फाइनल आंसर क्या बनेगा, x प्लस माइनस डेल्टा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो शायद ज्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अपने असाइनमेंट नंबर 3 में ही हम देखेंगे, तो आपको ये और समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने सबने नोट कर लिया, तो हम आगे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू कैपेसिटीज इन एन एक्सपेरिमेंट, टू कैपेसिटीज मेजर्ड C1 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड and C2 2.4 plus minus 0.2 microfarad. Calculate the total capacity in parallel with percentage error, है ना। तो C plus minus delta C upon C into 100, वो ये बोल रहा है परसेंटेज एरर से लिखेंगे हम हिसाब से। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। 12 अदरवाइज ऐसे आप 12 में समझने वाले हो। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए हमने डिजाइन किया होता है। तो उसकी कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं हम फैरेड, माइक्रोफैरेड, ऐसे पिकोफैरेड, ये उसके यूनिट्स होते हैं। तो जैसे आपने 10th में रेजिस्टर्स पढ़ा था, रेजिस्टर का काम है करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना अपने अंदर। तो जब हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस की टोटल वैल्यू चेंज हो जाती है। जिससे रेजिस्टेंस अभी हमने सीखा था 10th स्टैंडर्ड में कि अगर हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ऐसे ही दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या बन जाता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। ये तो सीखा हुआ हमने। सेम ऐसे ही अब हम कैपेसिटर के बारे में भी समझेंगे कि कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाया जाता है तो उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस होती है इट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब उल्टा है जो कि रेजिस्टेंस में पढ़ा था, इसका बिल्कुल एक्जेक्टली ऑपोजिट है। कैसे है, क्यों है, ये हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए कि हम कैसे उसको जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमसे गलती जो हो रही है उसको कैसे लिखा जाता है। हम इस लेवल पे इस चैप्टर में ये बातें सीख रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या है, क्वांटिटी के बारे में डिटेल में अभी आगे हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हम आपको सिखाते चले जाएंगे। तो कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगाया जाता है तो उसका फॉर्मूला है C1 प्लस C2, जो कि रेजिस्टेंस में किसका था, सीरीज का था। तो हमने इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसको हम रिलेट करते हैं तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताई ये बात कि हमको कैसे ध्यान में रखना है इसको।
तो कैपेसिटर इन पैरेलल का फॉर्मूला है मेरे पास C1 + C2। अब विद परसेंटेज एरर वो बोल रहा है हमें निकालना है। तो ये जो C1 आपको दिया है ये C1 प्लस माइनस डेल्टा C1 है, C2 प्लस माइनस डेल्टा C2। ये बात समझ आई? मतलब कहने का ये कि C1 की जो वैल्यू है 1.3 है और डेल्टा C1 की वैल्यू क्या है 0.1 माइक्रोफैरड। इट इज अंडरस्टूड, हम उसे इन यूनिट की बात है, मैंने और कुछ चेंज नहीं किया। सिमिलरली C2 क्या है 2.4 माइक्रोफैरड और डेल्टा C2 क्या है आपके पास 0.2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया। तो हमने Cp पहले तो निकालना पड़ेगा। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मतलब 1.3 प्लस 2.4 मतलब कितना हो गया 3.7 माइक्रोफैरड। अब डेल्टा Cp निकालना है, तो डेल्टा Cp भी कैसे निकलेगा डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2। तो डेल्टा C1 क्या है 0.1 और डेल्टा C2 क्या है 0.2, तो ये क्या बन जाएगा 0.3 माइक्रोफैरड। So what is the final answer? Final answer is Cp प्लस माइनस डेल्टा Cp C by C into 100 परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो परसेंटेज अब निकाल लेते हैं। डेल्टा Cp अपॉन Cp मतलब 0.3 डिवाइडेड बाय Cp कितना आया था अभी हमारे पास 3.7, ठीक है, इंटू 100। इसको करते हैं हमने सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा Cp अपॉन Cp इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज 300 डिवाइडेड बाय 37, डेल्टा Cp अपॉन Cp इंटू 100 जो आएगा वो कितना आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय 37, ये आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो Cp है हमारे पास 3.7 प्लस माइनस 300 डिवाइडेड बाय 37 परसेंटेज, ये दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये आंसर हमारे पास इसमें माइक्रोफैरड में है, तो परसेंटेज जो है वो हमारे पास ये कैसे लिख देते हैं हम इस तरह से माइक्रो। चले आगे, नेक्स्ट है हमारे पास अब डिफरेंस की बात आती है। एडिशन समझ आ गया हमको, तो हमारे पास ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जिसमें हम एडिशन के फॉर्म में कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, इसका पेरीमीटर निकालना विद एरर लिमिट। सेम जैसे भी हमने किया वैसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो अब आगे डिफरेंस की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया मैंने असाइनमेंट 3 का। अब जो बाकी जितने भी हमारे पास और ऑपरेशन हैं, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले करेंगे क्योंकि डेरिवेशन वी आर नॉट गोइंग टू आस्क। So in the NEET examination nobody is going to ask the derivation part, direct formula you have to learn। इसके अंदर कुछ डेरिवेशन का वैसे ऐसा नहीं है कि हमें डेरिवेशन नहीं करना, डेरिवेशन करना होता है वहाँ जहाँ पर इन बिटवीन कहीं फॉर्मूले की इन बिटवीन किसी स्टेप की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हमें करना पड़ता है। तो जैसे मैंने एडिशन का समझा दिया, ऐसे ही डिफरेंस का भी हम निकाल सकते हैं। मतलब क्वांटिटी क्या x इक्वल टू a माइनस b है, ठीक है। तो फाइनल आंसर x प्लस माइनस डेल्टा x हमें निकला है। ए भी कैसे दिया होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में दिया होगा आपको, ठीक है। और बी कैसे दिया होगा आपको बी प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे निकालेंगे, एक्स तो ए माइनस बी है तो क्या टास्क है डेल्टा एक्स निकालना। तो डेल्टा एक्स निकालेंगे और वो जो आंसर आएगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही आएगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर डिफरेंस में भी क्या हो सकती है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही हो सकती है। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे चलोगे वी विल गेट द फाइनल आंसर। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब उसमें भी वैसे ही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर तो प्लस वाले भी आएगी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर नेक्स्ट विल बी दिस। तो फाइनल आंसर फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स आपने ऐसे निकाल दिया। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो वो और हमें क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से बोला लेंथ ऑफ टू सिलेंडर्स L1 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है और L2 जो है वो 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ, डिफरेंस इन लेंथ L1 माइनस L2 बोला उससे आपको निकालो विद एरर लिमिट। तो L इज इक्वल टू मतलब आपसे क्या पूछा हुआ L प्लस माइनस डेल्टा L पूछ रहा है, तो L इज इक्वल टू L1 माइनस L2, तो इसके अंदर ये L1 है ये डेल्टा L1 है, यस
दिस इज L1, दिस इज डेल्टा L1। तो डेल्टा L कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो निकाल लेते हैं। L1 माइनस L2 तो बनेगा 5.62 माइनस 4.34, यस। और डेल्टा L1 आएगा 0.01 प्लस 0.02 मतलब 0.03। तो हमारे पास ये आ गया L, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं 1.28, ठीक है। दिस इज दिस। तो फाइनल आंसर इज L प्लस माइनस डेल्टा L इज इक्वल टू 1.28 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोगों को। इसको नोट कर ले, फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब x इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डायरेक्ट रिलेटिव एरर की बात करते हैं। इट इज डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b बाय b। ये फॉर्मूला है। तो डेल्टा x कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू x। आगे बात समझ, मतलब b टाइम्स डेल्टा a प्लस a टाइम्स डेल्टा b इज द फाइनल आंसर फॉर डेल्टा x। ये निकाला जाता है। तो हमें जनरली रिलेटिव एरर से ही बात कैलकुलेट करना होगा। तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं, a इंटू बी। ऐसे ही डिवीजन में भी सेम, कि मतलब क्वांटिटी x इज इक्वल टू क्या है? a डिवाइडेड बाय b। तो डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। डिवीजन में भी हमें इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हम इसको चलेंगे आगे, इसको क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात। जैसे उसने बोला क्वेश्चन नंबर 3, the length and breadth of a rectangular lamina are measured to be 2.3 plus minus 0.2 centimeter and 1.6 plus minus 0.1 centimeter, ठीक है। लेंथ दे दिया उसने आपको 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे दी उसने आपको 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया उसने क्या निकाला है? क्या निकालो? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लैमिना विद एरर लिमिट। लैमिना मतलब एक 2 डायमेंशनल प्लेन को बोलते हैं लैमिना, ठीक है। तो उसका आपने क्या निकालना है? एरिया निकालना है विद एरर लिमिट। अब ए मतलब क्या, एक तरीके से व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड? ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ए कैसे निकलेगा? एल इंटू बी से निकलेगा, यस। और डेल्टा ए बाय ए अभी हमने पढ़ा, इट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। आई बात समझ? तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 2.3 इंटू 1.6 और डेल्टा ए या तो हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, या फिर हमें मल्टीप्लिकेशन में तो याद करना आसान है। इट इज बी टाइम्स क्या बनता है बताएंगे? बी टाइम्स डेल्टा एल प्लस एल टाइम्स डेल्टा बी। मतलब कहने का क्या हुआ? 1.6 इंटू 0.2 प्लस 2.3 इंटू डेल्टा बी इज 0.1। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा है तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए आपका आंसर।
ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऑब्वियसली इट विल बी इन, ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर हमने किया 3. So we have discussed 1, 2, 3, 4. On the fourth already I have discussed, and then fifth also it is based upon the addition. So you can do this also. Next is question number 6. This is also difference है. Calculate the rise in temperature. Initial and final temperature of water as recorded by an observer. T1 and T2 दे रखा है. Calculate the rise in temperature. तो वही डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस का हमने सीख चुके हैं कैसे करना है. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसा है. ठीक है. फिर देन क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है और एरिया निकालना है. तो सेम एज वी हैव डन जस्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि है डिफरेंस वाले पर. ठीक है, डिफरेंस में सॉरी डिवीजन पर है. तो डिवीजन वाला करते हैं हम. लेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये हमें मालूम है, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I हमें गिवन है. V दे रखा है हमको और I भी दे रखा है, और परसेंटेज एरर इन R पूछा, तो कैसे निकालेंगे हम. देखें एक बार इसको. R इज इक्वल टू क्या दिया आपको, V अपॉन I. ठीक है, ये आपको यूज करके हमें फॉर्मूला निकालना है परसेंटेज एरर इन R. परसेंटेज एरर इन R का मतलब हमें क्या निकालना है, डेल्टा R बाई R इंटू 100, ये निकालना है आपको. ये बात समझ आई. तो डेल्टा R बाई R इस फॉर्मूले से हमें समझ में आ रहा है क्या बनेगा, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I. ये सीखा अभी हमने. ठीक है ना. तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो. V गिवन है हमको 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट. तो मतलब V तो हो गया 100 और डेल्टा V कितना हो गया 5. ठीक है. ऐसे ही जो हमारे पास I है वो कितना हो दिया उसने 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, है ना. तो I हो गया 10 और डेल्टा I हो गया आपके पास 0.2. तो ये हम निकाल सकते हैं. अब आपके पास डेल्टा I भी आ गया और I भी है, डेल्टा V भी है और V भी है. तो देखो अब कैसे निकलेगा. डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V इज 5 अपॉन V इज 100 प्लस डेल्टा I इज 0.2 डिवाइडेड बाई I इज 10. ठीक है. ये डेल्टा R बाई R आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ये 100 बन गया, तो दिस इज 7 बाई 100. ठीक है. और परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इन R, तो ये क्या बन जाएगा 7 बाई 100 इंटू 100. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 7%. परसेंटेज एरर इन R इज 7%. ये हमेशा ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला सीखा. इसके डेरिवेशन में जाएंगे उसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट हमें फार्मूला उसको याद रखना है और उसको अप्लाई करना है, उसके बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है. तो आपको वो समझ आ जाएगी चीज. आगे चलेंगे हम. ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 को पहले देखेंगे हम. 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको. टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 दे दिया उसने 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 दे दिया उसने आपको 200 प्लस माइनस 4 ओम. ठीक है. उसने बोला रेजिस्टर्स को सीरीज में पहले कनेक्ट किया आपने, तो RS का फॉर्मूला हमारे पास R1 प्लस R2, और फिर पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ये फॉर्मूला हो गया RP के लिए. तो उसने बोला यूज दिस रिलेशन, उसने गिवन है आपको कि सीरीज के लिए ये रिजल्ट यूज करना है और पैरेलल के लिए आपने ये रिजल्ट यूज करना है, और उसका उसने एरर भी निकालने का आपको बताया कि इसको कैसे निकालेंगे. RP की जगह उसने R डैश पुट करा है. तो एक ही बात है, डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 बाई R2, ये R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर. ये इसने कहा ये फॉर्मूला यूज करके आप निकालें. फॉर्मूला गिवन है आपको. एक्चुअल में इसको डिराइव करने का मतलब मैथमेटिकल हमें डिफरेंशिएशन कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा, तो हम डिराइव कर सकते हैं इसको, बट सिंस इट इज गिवन टू यू तो आपने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को यूज करना है. तो हम परसेंटेज एरर के टर्म्स में करेंगे. तो दिस इज योर R1, दिस इज योर डेल्टा R1, ऐसे ही दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर डेल्टा R2. तो आसान है निकालना. RS
प्लस माइनस डेल्टा आर एस, ये निकालना है आपको। तो आर एस पहले निकाल लेते हैं हम। इट इज R1 प्लस R2, 100 प्लस 200, तो कितना आ गया 300 ओम। ठीक है, और डेल्टा आर एस हमारे पास एडिशन में ना, तो सिंपल एडिशन ही है, 3 प्लस 4, तो कितना हो गया 7 ओम। तो आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस कितना 300 प्लस माइनस 7। ठीक है, अब पैरेलल में आ जाए 1 अपॉन आर डैश, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 मतलब 1/100 प्लस 1/200। तो ये बनेगा मेरे पास 2 प्लस 1 अपॉन 200, दैट मीन्स 3/200, मीन्स आर डैश इज इक्वल टू 200/3। यस, सो डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1, डेल्टा R1 is 3 अपॉन R1 स्क्वायर, दैट मीन्स 100 स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल्टा R2 4 अपॉन 200 स्क्वायर, और आर डैश में हम निकाल चुके हैं, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हम रख कर देते हैं, ये हो गया हमारा। अब देखिए डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश निकाला हमने 200/3, तो 200/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर। तो डेल्टा आर डैश, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 3 अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200/3 का स्क्वायर। ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेल्टा आर डैश आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, आर पी इज इक्वल टू वॉट, मतलब आर पी को उसने आर डैश बोल रहा था वो, तो आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश। जैसे आर एस निकाला ऐसे ही आपको आर पी निकालना है। इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद एरर लिमिट्स पूछ रहा है वो, तो आपने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके इसको पुट कर देना है। कैन यू डू इट ऑन योर ओन? कैलकुलेशन पार्ट ही रह गया जो कि आपको करना होगा। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले हम जो हमारा लास्ट जो है पावर वाला वो खत्म कर लेते हैं, और उसके ऊपर फिर हम आगे चलेंगे। फिर हम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाएंगे। अगर हमारे पास आंसर जो है वो जो फाइनल क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में हो कि हमें इस तरीके से कुछ इस तरीके से है, हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कॉम्बिनेशन में साथ में पावर्स भी हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? सो इट इज एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम एक्स ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम कुछ और भी ले सकते हैं नाम से, इट इज वाई, है ना, वाई भी है अगर हमारे पास, तो इट इज पी ले लिया मान लिया, है ना। तो डेल्टा पी अपॉन पी, ताकि हमारा कुछ कंफ्यूजन ना रहे, तो इट इज एक्स टाइम पावर जो है वो आगे आ जाएगी, एक्स टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस वाई टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस जेड टाइम डेल्टा सी बाई सी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ही प्लस आता था वाइल कैलकुलेटिंग द एरर, इसलिए प्लस प्लस आ गया और जो पावर थी वो आगे आ जाएगी। ये है हमारा तरीका इसको निकालने का, जब हमारे पास पावर की टर्म्स में हो। इसके बेस कुछ क्वेश्चन है, वो असाइनमेंट 4 है हमारा, उसमें आप उसको डाउनलोड कर लेंगे असाइनमेंट 4, उसमें आपको ये बात इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे उसने बोला ए फिजिकल क्वांटिटी P इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रही हूँ आपके सामने, अंडर रूट c इंटू डी। ठीक है, और उसने क्या दिया आपको, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P? क्या निकालेंगे परसेंटेज एरर? देखो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 पूछ रहा है वो निकालने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P पहले हम निकाल लेते हैं, फिर इंटू 100 कर देंगे। तो डेल्टा P अपॉन P क्या होगा, 3 टाइम्स डेल्टा A, 3 टाइम्स डेल्टा A बाई A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B बाई B प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा C बाई C, ठीक है, प्लस डेल्टा D बाई इंटू 100 करना है, तो सबको एक साथ हम 100 कर देंगे तो हो जाएगी बात। यस, तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 इज इक्वल टू
3 times delta A by A into 100 plus 2 times delta B by B into 100, लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 1 by 2 डेल्टा C by C into 100 प्लस डेल्टा D by D into 100। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या गिवन है हमको, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A, B, C and D। ये परसेंटेज एरर इन A, परसेंटेज एरर इन B, परसेंटेज एरर इन C, परसेंटेज एरर इन D। तो क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन A 1%, 3 into 1 प्लस परसेंटेज एरर इन B कितना रहेगा 3%, तो 2 into 3, फिर परसेंटेज एरर इन C कितना रहेगा 4, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 into 4, फिर D के अंदर कितना दे रखा है परसेंटेज एरर 2%, तो प्लस 2। ये क्या बना आपके पास 3 plus 6 plus 2 plus 2, that is 13%। yes, परसेंटेज एरर इन B हम कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को। ऐसे ही एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 of assignment 4, a square x is equal to a square b raised to power 2 by 3 upon c d q। ये दे रहे हैं आपको, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा x बाई x का एक्सप्रेशन लिखा है। तो क्या बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस 2 बाई 3 टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d। ये आ जाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट तो ये, सिर्फ हमें एक्सप्रेशन ही लिखना है कि हम कैसे उसको रिलेटिव एरर से लिखेंगे। फिर उसने बोला व्हाट विल बी द परमिसिबल एरर इन परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर गिवन है आपको। तो मतलब परमिसिबल परसेंटेज एरर मतलब इंटू 100 वो पूछ रहा है आपसे निकालो। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स बाई एक्स अभी आपको समझाया, इंटू 100 पहले सबको 100 से कर दो, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 बाई 3 डेल्टा b by b into 100 plus delta c by c into 100 plus 3 times delta d by d into 100। अब हमें ये सब गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। कुछ करना है बस और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 into 2 plus 2 by 3 into 3 plus 1 plus 3 into 4। yes, इस 3 का आंसर ये आ जाएगा कितना, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 12। तो ये बन गया आपके पास यस 90, 13 प्लस 2 15 प्लस 4 19%। यस, क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे, ये समझ आ गया आपको, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। एक है हमारे पास, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक और एंड लास्ट टर्म इस चैप्टर की हमको समझनी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कितना आप ट्रू वैल्यू के साथ, आपकी जो मेजर वैल्यू है वो कितने ट्रू वैल्यू के क्लोज है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। कितने एक्यूरेट है वो वैल्यू। तो एक्यूरेशन किससे कंपैरिजन होगा, एक्यूरेसी किससे कंपैरिजन होगी, आपकी ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन होगी। सो एक्यूरेसी बेसिकली गिव्स द हाउ क्लोज इज द मेजर वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। प्रिसिशन है प्रिसाइज, कितना आपने उसको प्रिसाइजली मेजर किया।
तो प्रिसिशन इज रिलेटेड टू योर लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जितना लीस्ट काउंट उसका कम उतनी ज्यादा प्रिसाइज है वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं एक स्केल, 3 इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं हम, एक है स्केल और दूसरा है हमारे पास वर्नियर कैलिपर और थर्ड है हमारे पास स्क्रू गॉज। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है लेंथ को मेजर करने के, ठीक है, स्क्रू गॉज। तो ये है हमारे पास स्केल, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? इट इज द मिनिमम रीडिंग व्हिच कैन बी रेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। कम से कम वो रीडिंग जो हम उस इंस्ट्रूमेंट से रीड कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। तो अगर मैं एक नॉर्मल जो ऑर्डिनरी स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम मैं उसमें से क्या रीड कर सकती हूँ 0.1 सेंटीमीटर कर सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कम से कम मैं 0.01 तक रीड कर सकती हूँ, तो वो इंस्ट्रूमेंट उससे ज़्यादा प्रिसाइज हो गया कि मतलब हम और प्रिसिशन और बारीकी तक उसके अंदर जा सकते हैं। एक सपोज एक क्वांटिटी है, उसकी लेंथ है 3.3 और 3.4 के बीच में। अब कितनी है ये हम उस ऑर्डिनरी स्केल से जिसका कि लीस्ट काउंट है 0.1 उसमें हमारे को नहीं आ रही है रीडिंग कि वो कितना है, तो हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, इट इज 3.35 होगा, 3.3 और 3.4 के बीच में तो 3.35 होगा या 3.6 होगा, ये अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। बट अगर मेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ जाए जिसके अंदर हम 2 डेसिमल तक रीड कर सकते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा प्रिसाइज अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू नहीं देगा, मुझे एक ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू रीड करने के लिए मुझे क्लोजनेस तक ले जाएगा, अपनी ट्रू वैल्यू के क्लोज तक ले जाएगा। तो 3.36 और 3.3 कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है? 3.36 वाली ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि उसको हमने आपको 2 डेसिमल प्लेस तक रीड कर लिया। बट अगर हम और ज्यादा प्रिसाइज तक जाएं, मतलब जहाँ पे लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये और हमें प्रिसाइज वैल्यू रीड करवाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। So accuracy is basically the closeness of the measure value with the true value, whereas precision is related to the instrument and it is related to the instrument. Instrument की कौन सी क्वालिटी? लीस्ट काउंट। जितना लीस्ट काउंट उसका कम होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा वो इंस्ट्रूमेंट, उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी वो रीडिंग जो हम रीड कर रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है जो प्रिसाइज है वो क्या हो, ज्यादा एक्यूरेट भी हो। एक्यूरेसी का इससे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, सपोज आपने इंस्ट्रूमेंट लिया और उसके अंदर कोई फॉल्टी है वो चीज, बट वो आपको 2 डेसिमल तक प्लेस तक रीड कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्टी जो है वो तो फाइनल आंसर में आएगा, फॉल्ट तो आएगा ही आएगा। तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेसी हमेशा ही एक्यूरेट रिजल्ट दे जो ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसिशन को डेफिनेटली एक्यूरेसी से रिलेट नहीं कर सकते, बट एक्यूरेसी को हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा रिजल्ट अगर हम उसको ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से रीड करें। मेरी बात समझ आ रही है? आई रिपीट, accuracy can be related to the precision but precision cannot be related to the accuracy। ठीक है, एक्यूरेसी है मेरा कोई वैल्यू रीडिंग जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी अगर मैं उसको ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से रीड करूँ। डेफिनेटली दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। बट अगर इंस्ट्रूमेंट ही मेरा फॉल्टी है तो चाहे मैं जितना भी प्रिसाइज रीडिंग ले रही हूँ वो फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करेगी, एक्यूरेसी से मैच नहीं होगी, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। तो ये बात समझने की है, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। तो जब हम अपने अभी मेजरमेंट में हम एक्यूरेसी को एरर से भी रिलेट कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम जो करे थे कि जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा असाइनमेंट 3 का, हमने कहा हम बाद में करते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा असाइनमेंट 3 का, क्वेश्चन नंबर 10। The period of oscillation of a simple pendulum T is equal to 2 pi under root L over G. Measured value of L deviation 20.0 centimeter known to 1 millimeter accuracy। इसका मतलब एक्यूरेसी क्या, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये इसकी एरर आ सकती है इसके अंदर। 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर एंड दिस इज 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन n नंबर ऑफ ऑसिलेशन ले लिया 100 और वो कितना टाइम आ रहा है 90 सेकेंड। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब उसका जो वो है आपका लीस्ट काउंट और जो है वो कितना है 1 सेकेंड है। तो लीस्ट काउंट मतलब इतनी ही उसमें एरर हो सकती है, तो
उसके अंदर एरर आ सकती है वो यही एरर आ सकती है जो उसका लीस्ट काउंट है। ये बात समझ आ रही है? व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी? एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी मतलब डेल्टा जी निकालना है और हमें यहाँ पर एक किसकी टर्म्स में निकालना है, परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है। एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है अगर हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो ईजी भी हो जाती है बात। तो हम ये रिजल्ट को देखो कैसे लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L बाई जी। तो जी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 4π² L अपॉन टी स्क्वायर। यस, अब ये जो रिजल्ट है ना ये तो कांस्टेंट है, ये तो एरर में काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 क्या बनेगा, इट इज एल डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। यस, ये बनेगा। तो डेल्टा एल हमारे पास है, एल है हमारे पास, अब पर हमारे पास तो कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, इट इज नॉट टोटल टाइम। तो कैसे हम निकालेंगे इस चीज को, इसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये चीज हमने नोट कर ली है, इसको हम रब कर देते हैं, हमने इसको पुट करना है। देखो बच्चे, अगर मेरे पास हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 100 n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को टाइम लग रहा है t, तो 1 को कितना लगेगा t बाई n, ये क्या बनेगा आपका कैपिटल T। टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो ये मेरा आया t बाई n, मतलब कैपिटल T इज इक्वल टू t बाई n। यस, तो डेल्टा t कितना आएगा, इसके अंदर जितना एरर है उतना ही आएगा। यस, अब इन दोनों को जरा हम डिवाइड करते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो डेल्टा t बाई t इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा t अपॉन t। तो मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ डेल्टा t बाई t, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट, डेल्टा g बाई g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t इंटू 100। यस, t मेरे पास है, डेल्टा t भी है मेरे पास, तो हम निकाल सकते हैं। समझ आ गई सब लोगों को, मतलब n की हमें ज़रूरत ही नहीं थी करने की, हम डायरेक्ट उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हमको समझाया। तो इसके साथ ये असाइनमेंट भी हमारा कंप्लीट डिस्कस हो गया। असाइनमेंट 4 के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 भी सिंपल है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। देखा हाउ मच विल द मैक्सिमम एरर इन द एस्टीमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो डायमेंशनलेस है, वो एरर में काउंट नहीं होगा। तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी को मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था इसके लिए, ये वाला जो हमने निकाला मेजरमेंट ऑफ जी, जिसने क्या दे रखा है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग दिस। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस 100 की जगह उसने 20 वाइब्रेशन दिया और टोटल टाइम उसने 36 सेकेंड्स दिया। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। टी दे रखा है, लेंथ इज बीइंग मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1, मतलब ये डेल्टा एल और ये डेल्टा टी। फिर उसने दिया एक एक्सपेरिमेंट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड, एल एम और ये स्मॉल ई पाई आर स्क्वायर, जो उसने दिया स्मॉल जो है एल है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में रहता है ना स्मॉल एल, ठीक है। डायमीटर दे दिया 0.041। आपको जो ये निकालना है जी के लिए ये पुट करनी है, उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। परसेंटेज के फॉर्म में पूछा नहीं है तो परसेंटेज फॉर्म में नहीं निकालो तो भी चलेगा। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। पाई कांस्टेंट है वो आएगा ही नहीं, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब जो आर है उसकी जगह आपको डायमीटर दे रखे तो आर निकालना पड़ेगा डी बाई 2 से। दिस कैन बी योर होमवर्क, जो आपने ट्राई करना है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बस वेराइटी हमने दी है थोड़ा सा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। मैं अगर हिंट चाहते हो तो मैं एक बार हिंट यहाँ लिख लेती हूँ ताकि इसको फॉर्मूले में पुट करना आपको आ जाए।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इट विल बी डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा g बाई g प्लस, अच्छा g भी कांस्टेंट है, उसको भी इसलिए एरर में नहीं लेंगे, तो वो g को भी एरर में नहीं लेना है, तो ज़रूरत ही नहीं है g को पुट करने की, ठीक है। और ये आ जाएगा डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा l बाई l, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा स्मॉल l बाई l, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम एरर इन y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ईटा में पूछा है, तो y जो v है, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए ट्यूब, v इज इक्वल टू पाई PR4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा l। ईटा को फॉर्म में ले आओ तो पाई PR4 डिवाइडेड बाई 8VL, ठीक है। ये देखो हमारे को प्रेशर दे रखा है, हमको रेडियस दे रखा है, उसके बाद उसमें v, जो v है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, टाइम की फॉर्म में दे रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसको अभी डायमेंशन से हमने एरर की फॉर्म में निकालना है। और ये हमारे पास l लग गया उसमें 18.2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ईटा। ईटा इज बेसिकली व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड के जब फ्लो करता है तो जो अपोजिशन वो फील करता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहा है वो, ये यहाँ पर पाई बाई 8 कांस्टेंट है, इसको हम नहीं लेंगे, डेल्टा बी बाई पी, ठीक है। और परसेंटेज के फॉर्म में पूछ रहे हो, हाँ, तो इंटू 100 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। अच्छा, अब उसने देखो उसने क्या दिया, इफ दीज क्वांटिटीज आर मेजर्ड टू बी द एक्यूरेसी, मतलब डेल्टा आपको क्या दे दिया, पी दे दिया, डेल्टा आर दे दिया, डेल्टा वी दे दिया, डेल्टा एल दे दिया, तो परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 6 मैंने डिस्कस कर लिया, और 7th है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फिर से परसेंटेज एरर इन रो निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर इन रो, यस, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू क्या बनेगा, मेरे पास पाई हमारे पास कांस्टेंट हो गया, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये आ जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में हमें परसेंटेज एरर निकालने का। हमारे पास डेल्टा आर है, हमारे पास डेल्टा एल है, और हमारे पास स्मॉल डेल्टा आर भी है, ठीक है। हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तो असाइनमेंट 4 के भी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, रिवाइज इट थॉरोली, डू इट ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स टिल यू गेट द परफेक्शन इन दिस चैप्टर। सो पूरे चैप्टर में हमने 4 असाइनमेंट्स दिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से आपने सॉल्व करना है और अच्छे से उसको सिंप्लीफाई करके उसको ईजी बना लेना है, ठीक है।